Good morning, everyone. You can see that we are discussing the stepwise sectional view diagram of human heart, which we have gone through yesterday also, but due to some network issues, there may be few students who are not able to go through this. So I'm sharing this once again. Just watch the steps and try to draw similarly by pausing the video and drawing this. Okay, this is a 5 mark surest question from life process. Follow the guideline, please. Ashita, we are trying to draw the diagram of human heart stepwise. Okay, must follow. And try to apply some mnemonics also to learn the diagram. As you can see that it is looking like an alphabet V, right? Alphabet V with covered up, and you can see that two caps are there, right? And now internally you will be seeing an alphabet W. So here comes the alphabet W, right? Now the blood vessels. So they're the blood vessels with the W, V.
So now you can see your sectional view of human heart is ready. These are the two reasons you'll be observing. Atrium, left, right. These are ventricle, left ventricle, this will be right ventricle. Since we are warm-blooded animals, so we cannot encounter any sort of mixing of blood, that is oxygenated blood and deoxygenated blood. So we will prefer that there must be a separation, and for that separation there is a wall, the separating boundary, that is called septum. This is will be known as septum, as you'll be seeing the labeling. Okay, and the oxygenated blood from lungs initially will be poured over here, left atrium, goes to this ventricular area. And since there should not be any reverse backflow of blood, so there is a flap-like structure, a tissue, that is called bicuspid valve, V-A-L-V-E. Here the same will be tricuspid valve, right? So let's see the labeling and all. This is very important because the diagram is incomplete if the indication of inflow and outflow of blood is not indicated with the help of arrows. Now come labeling the diagram. Now as you can see, septum, right? The valves names are not mentioned over here, but this side here we can say bicuspid and this side tricuspid. They have mentioned the name vena cava. You can say superior vena cava when the blood is coming from upper body to the heart, and inferior vena cava when it is coming from the lower part of the body, which is below human heart. Normally, veins has a functions to carry deoxygenated blood, whereas pulmonary veins is pouring the oxygenated blood from lungs to left atrium. The word pulmonary means doing the reverse function. The moment blood flows into left atrium, it is not going to hold that blood and immediately it passes to the left ventricle. And since due to this, the entire pressure is on left ventricle to hold that pressure of blood, and that's why the ventricles are thicker as compared to atrium or auricles. Clear? Now, out of arteries, normally arteries are responsible to carry oxygenated blood to different parts of the body from the heart. So since their collection point is only one, that is ventricle, right? So they have to again counteract that intense pressure of blood. That's why arteries are thicker and veins are responsible for carrying the deoxygenated blood from different body parts. Different body parts means that they don't have to encounter that much of pressure, and that's why veins are thinner as compared to arteries. Where normal arteries is responsible for carrying the oxygenated blood to different parts of the body, your pulmonary arteries is doing the reverse function. So this is the basic outlook, and then we need to explain this for grade 10 point of view, that how does our heart works, role of septum, role of valve. So what is valve doing? It is prohibiting the backflow of blood. एक बार blood जब atrium से ventricle में आ गया तो वो आगे जाना चाहिए, रिवर्स नहीं हो जाए, वरना दिक्कत आ जाएगी. उस रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए
कुदरत ने हमारे अंदर में वल्व डाला है, ये वल्व को आप अपने ऊपर वाले टंकी के जो ग्रीन कलर बॉल है उससे थोड़ा सा कंपेयर करके सोचो कि जब आपका टंकी भर जाता है और पानी अगर ओवरफ्लो नहीं किया तो वो किसकी वजह से नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि वो जो ग्रीन कलर का बॉल है वो ऊपर की ओर आ जाता है एंड इट डजंट अलाउ एनी ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर. Similarly, to prevent the backflow of the blood, we have valve. To prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood, we have septum. I hope with the help of this stepwise diagram and labeling as we have done earlier also of internal structure of leaf, digestive system, respiratory system of human being. Similarly, this is one of the surest 5-mark questions. Once at least it will come. Okay. Now I'm sharing brief explanation of the human heart, which I've already told you that four-chambered, purpose and all. So I'm sharing one more video with the same for this. तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हार्ट कितना बड़ा होता है स्टूडेंट्स. जनरली बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा कि हार्ट का जो साइज होता है वो फिस्ट के बराबर होता है. फिस्ट मतलब मुट्ठी, हमारे मुट्ठी के बराबर. इनफैक्ट स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ से आप हार्ट का शेप भी समझ सकते हैं कैसा होता है. आप देख सकते हैं कुछ कुछ ट्रायंगुलर शेप होता है. ट्रायंगुलर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें इस फोटोग्राफ पे कंसंट्रेट करना चाहिए. इससे हमें और बहुत डिटेल चीजें पता चलेंगी. बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है. चेस्ट कैविटी में, thoracic cavity, thoracic cavity या chest. Sometimes it asks where heart is located. It is thoracic cavity. Chest cavity में located है, inside rib cage, inside rib cage. ठीक है स्टूडेंट्स. rib cage के अंदर क्यों है स्टूडेंट्स वो? क्योंकि हार्ट जो है वो डेलिकेट होता है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो rib cage उसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फिर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे लंग्स होते हैं. तो लंग्स होते हैं हमारे. तो स्टूडेंट हम समझ सकते हैं कि हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में होता है और नीचे ये डायफ्राम है. हार्ट लंग्स के बीच में होता है, डायफ्राम के ऊपर. और प्लीज नोट स्टूडेंट्स कि हार्ट जो है वो चेस्ट के सेंटर में होता है. सेंटर में, सेंटर में. तो इस पॉइंट, now listen this carefully. Normally we say heart is been located towards the left and right, towards the left side of our body. It's true also, but basically heart is at the center. Some part is tilted, that's why. So listen this carefully. इनको मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि हार्ट जो होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट, चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में सिचुएटेड होता है. तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. अब देखिए हार्ट जो है वो सेंटर में सिचुएटेड है. हाँ, हमें फील वो लेफ्ट में होता है लेकिन एक्चुअली वो सेंटर में होता है. तो आप सोचोगे यार जब सेंटर में होता है तो फील लेफ्ट में क्यों होता है? तो उसके दो रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स. देखो एक रीजन तो स्टूडेंट्स ये होता है कि आप देखिए हार्ट भले सेंटर में है लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट एक्चुअली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है. लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है. पार्ट ऑफ हार्ट इज एट द सेंटर बट सम पार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो एक तो ये कारण है कि वो लेफ्ट में फील होता है. इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट कारण है स्टूडेंट्स व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर रीजन, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही समझ पाएंगे स्टूडेंट्स. बट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि हार्ट जो है वो सेंटर में लोकेट होता है. सेंटर, चेस्ट के सेंटर में, लेफ्ट में बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है. तो स्टूडेंट्स हार्ट के अगर लोकेशन के बारे में बात करना हो तो हम बोल सकते हैं थोड़े से कैविटी में, इनसाइड रिब केज, बिटवीन लंग्स, अबव डायफ्राम. ठीक है. दूसरा सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, tilted towards left. ठीक है स्टूडेंट्स. हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हार्ट के अंदर क्या है. सपोज को इस हार्ट को हम काटते हैं तो इसके अंदर हमें क्या चीजें दिखाई देंगी. दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स. देखिए स्टूडेंट्स, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट. हार्ट को अगर बीच से काटा जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है स्टूडेंट्स. क्या ये स्ट्रक्चर है? वील जस्ट हैव अ लुक. सबसे पहले तो आप देखें स्टूडेंट्स कि बाहर जो हार्ट के वो मसल्स दिखाई देते हैं. मसल्स, जैसे मैं पिछले साइड पे जा रहा हूं, देखिए हार्ट बाहर से आपको मस्कुलर दिखाई दे रहा है. मस्कुलर. तो ऑब्वियसली हार्ट की जो वॉल्स है वो मसल्स की बनी हुई होती है और वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है. मसल्स के बारे में हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कई तरीके के होते हैं. कार्डियक मसल भी एक तरीके का मसल होता है. हार्ट जो है वो इसी मसल से बना. कार्डियक का मतलब ही होता है
Now you can see that again. These are our atrium. These are ventricles, and you can see that this is going to be our septum. Okay, and there will be a valve over here, valve over here. Here also you'll find a valve, and here also you'll find a valve, so that the blood which is flowing into the red pipe, you can say, will not come back. So valve plays a very, very important role in preventing the backflow of blood, so that it can be sent in a location required. Something related to heart, cardiac muscle, मतलब वो मसल जिससे हार्ट बनाते हैं, वो अलग टाइप का मसल होता है, क्योंकि हार्ट को बहुत अलग टाइप के काम करने पड़ते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कैसे काम होता है हम देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखें कि यहाँ पर एक चेंबर दिखाई दे रहा है, एक होल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान दें, चेंबर, यहाँ पर एक चेंबर या होल दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे एक चेंबर। These four chambers are actually very important. These four chambers are actually very important. बोलते हैं four chambers of heart. Heart में से four chambers या compartments होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं उनके देखें। जैसे ये जो chamber है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं right atrium, A-T-R-I-U-M, right atrium. This compartment, this chamber is called right atrium. Atrium, please note the word. ये जो compartment है, ये भी atrium है, लेकिन ये left side में body के, इसलिए बोलते हैं left atrium. ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये दोनों, इनको बोलते हैं ventricles. Ventricles. इसको बोलते हैं right ventricle. As I've guided you, that ventricles are the reason where you are going to have maximum pressure of the blood. That's why to withstand that pressure, they are thicker. और इस चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। These are the four chambers of the heart, and that is the main thing in the heart. Right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. अब इन चैम्बर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर आप यहाँ पे कुछ ट्यूब्स भी देख रहे होंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। These are actually blood vessels जो ब्लड कैरी करती हैं, हार्ट तक ब्लड लाती हैं या हार्ट से ब्लड ले जाती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ और चीजें देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ पर एक लेयर दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स। ये जो लेयर है वो इस ट्यूब के पीछे भी है, इस ट्यूब के पीछे भी है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो लेयर है उसको स्टूडेंट्स बोला जाता है सेप्टम। Separating the oxygenated blood from deoxygenated blood. ये जो है स्टूडेंट्स बेसिकली एक पार्टीशन है। पार्टीशन कैसा पार्टीशन स्टूडेंट्स देखें, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, तो ये जो है वो हार्ट का राइट पोर्शन है। ठीक है, ये दोनों मिलके, ये दोनों चैम्बर्स मिलके, ये दोनों चैम्बर्स को देखें, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये दोनों चैम्बर्स मिलके हार्ट का लेफ्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स राइट पार्ट जो है और लेफ्ट पार्ट जो है उनके बीच में एक पार्टीशन होता है, पार्टीशन, वो है सेप्टम। इस पार्टीशन के कारण कोई भी चीज जो राइट पार्ट में है वो लेफ्ट में नहीं जा पाएगी, लेफ्ट में नहीं जा पाएगी, और जो लेफ्ट पार्ट में है वो राइट में नहीं जा पाएगी। दिस सेप्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ये क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली अ वाल्व। वाल्व क्या होता है स्टूडेंट्स? वाल्व ऐसी कोई चीज होती है जो वन वे फ्लो अलाउ करती है, वन वे फ्लो ऑफ लिक्विड। वो किसी लिक्विड या गैस का वन वे फ्लो अलाउ करती है। जैसे मतलब यहां पर अगर ब्लड है स्टूडेंट्स, वो ब्लड जो है फ्लो होके यहां आ सकता है इस वाल्व से। राइट एट्रियम में कोई ब्लड है तो फ्लो होके राइट वेंट्रिकल में आ सकता है इस वाल्व से। But it will not allow the backflow of blood, right? लेकिन उल्टा फ्लो नहीं हो पाएगा, उल्टा फ्लो नहीं होने पाएगा। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है जो आगे हम देखेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक वाल्व होता है बिटवीन दीज टू चैम्बर्स। तो इसमें भी क्या होता है कि ब्लड अगर यहाँ पे है तो फ्लो के इस चैम्बर में आ सकता है, लेकिन उल्टा फ्लो नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, वैसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है, वन वे वाल्व। वैसे स्टूडेंट्स आप देखिए एक यहाँ पर भी वाल्व है, once again a valve। ये वाल्व भी क्या करता है स्टूडेंट्स? वन वे फ्लो ब्लड का अलाउ करता है। मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल है उससे इस ट्यूब में ब्लड को जाने दे सकता है,
लेकिन उल्टा फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स एक और वाल्व होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें यहाँ पर एक वाल्व होता है जो इस ट्यूब में, ये जो रेड रंग की आपको ट्यूब दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही है, ये पीछे है ब्लू वाले ट्यूब के, उसमें खुलता है वो भी वन वे फ्लो ऑफ ब्लड अलाउ करता है कुछ इस डायरेक्शन, इस चेंबर से इस ट्यूब। इस तरह से ये 4 वाल्व्स होते हैं, इनका क्या रोल है वील सी दैट। तो स्टूडेंट्स हमने हार्ट के कुछ मेजर पोर्शंस देखे, और भी चीजें हम बाद में देखेंगे। क्या मेजर पोर्शंस देखेंगे? 4 चेंबर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है, उनका नाम। So I hope now this brief description of human heart is must be clear to each and every student who is enjoying this valve का फंक्शन समझ में आ गया होगा। आर्ट्रियम वो जगह है जहाँ पर पहले ब्लड आता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो। वेंट्रिकल्स वो है जहाँ फाइनली ब्लड जाता है, उसके बाद फर्दर उसकी डिसीजन होती है, डिसाइड्स होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर थिकर। आर्टरीज जो है ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसलिए थिकर। Veins are responsible for carrying deoxygenated blood, that's why they are thinner and all, right? So this is giving you a clear-cut idea that what is all heart about, what the parts being used up and why, right? Now there is one more protection is there, because heart is a very delicate organ, so this has to be protected. And चारों तरफ इस तरीके से एक कोटिंग होती है चारों तरफ, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, जैसे लंग्स को था प्लूरा, वैसे ये है पेरिकार्डियम, एक लेयर होती है पतली सी, पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको। उसका मेजर काम होता है स्टूडेंट्स हार्ट को प्रोटेक्ट करना और हार्ट को वो उसका शेप में रखना, वो उसका शेप मेंटेन करती है। दैट इज अ लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम।